Hello, my dear students. So, we will continue with our series of introduction to AS. So, कल हमने क्या क्या सीखा था वो रिवाइज करते हैं पहले. फर्स्ट हमने देखा था मीनिंग ऑफ गैप, उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद एस्पेक्ट्स कवर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या क्या एस्पेक्ट्स है बताओ? 4 एस्पेक्ट्स है, करेक्ट. फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देन मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देन प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो कौन से भी स्टैंडर्ड में आपको ये 4 गाइडलाइंस मिलेगी अबाउट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. ओके. उसके बाद बेनिफिट्स भी देखे थे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के. 3 बेनिफिट्स है, मेरे साथ रिवाइज करो. फर्स्ट क्या था? Standardization of alternative accounting treatment. Second, additional disclosure requirements. And third, comparison of financial statements, interfirm comparison as well as intra-firm comparison. Okay, तो यहाँ तक हमने देखा था. आज हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. तो मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? तो हमारी इंस्टीट्यूट ICAI. ओके, ICAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड वन board, accounting standard board in 1977 for issuance of accounting standards. So ASB accounting standard board क्या करता है? They take into consideration international accounting standards, IAS or IFRS, international financial reporting standards, while framing accounting standards in India. So they take IAS or IFRS, then they take applicable laws, customs, usages and business environment in our country, and accordingly they formulate AS in India. So इस ASB में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कौन लोग होते हैं? तो देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर्स, एकेडमिशियंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब मिलके बनता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उनके प्रिपेयर किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स NFRA रेकमेंड करती है टू MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड देन MCA विल स्पेल आउट दिस स्टैंडर्ड्स टू कंपनीज इन इंडिया. ओके. तो ASB है हमारी इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं. सो डिटेल में ये ASB कैसे काम करता है देखो. हाउ स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर बाय द ASB. So ASB first identify the broad area for formulation of accounting standards. Then ASB will constitute one study group. Okay, that study group will prepare preliminary draft of proposed accounting standards. So इस draft में क्या क्या होगा? So objective of the standard, scope of the standard, then definitions of the terms used in that accounting standard, and बाकी के 4 aspects हमारे है ही: recognition, measurement, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो ये ड्राफ्ट बनाने के बाद वो स्टडी ग्रुप दैट ड्राफ्ट किसको देगा? ASB को देगा फॉर कंसिडरेशन. एंड इफ देयर आर एनी रिविजन्स आर मेड इन दिस preliminary draft, and then there is a circulation of this draft to whom? To council members of ICAI and specified outside bodies such as MCA, SEBI, CBDT, C&AG, SCOPE. सो इन सभी स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनकी एक मीटिंग होगी, उनके व्यूज लिए जाएंगे ऑन दिस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, एंड उनके व्यूज कंसीडर करके एक फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा जो इशू होगा फॉर पब्लिक कमेंट. So public comments are invited and received, and after taking into consideration these comments, there is a finalization of draft which is submitted to council for consideration and for approval for issuance. Then council of the institute will take into consideration this final draft. If there is necessary, they will make the modification in consultation with the ASB, and there will be final issuance of accounting standard. So this is the procedure for standard setting. So देखो, for non corporate entities मतलब कौन? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप. तो ये कौन हो गए? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. तो उनके लिए कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है? तो हमारा ICAI issues accounting standards for non-corporate entities, and for corporate entities Ministry of Corporate Affairs MCA issues accounting standards in consultation with NFRA.
ओके, तो यही स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर उन्होंने चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन की है। क्या होता है, फिर से रिवाइज करते हैं। ASB आइडेंटिफाई करती है ब्रॉड एरिया फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में AS प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एरिया है उसके ऊपर AS प्रिपेयर करना है। So this is the identification of broad area. Then they will constitute one study group. वो study group क्या करेगा, they will prepare a preliminary draft. उस draft में क्या रहेगा, objective, scope, definitions, use, करें, वो draft में रहेगा। That draft is circulated to council as well as specified outside bodies. उनके views लिए जाएंगे, accordingly modifications किया जाएगा, करें। फिर फाइनल एक्सपोजर सबमिट होगा पब्लिक को फॉर देयर कमेंट्स। वंस कमेंट्स आर रिसीव देयर इज अगेन मॉडिफिकेशन एंड फाइनल ड्राफ्ट इज सबमिटेड टू काउंसिल एंड काउंसिल विल इशू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो गया and industry will start applying those accounting standards while preparing and presenting their financial statement. So apply करते वक्त कुछ उनको problems आ गए, कुछ दिक्कत आई, कुछ explanation उनको चाहिए, तो accordingly ASB explanation add करते हैं। ओके, तो इसलिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट्स होते हैं जो हमारे RTP में एज अ अमेंडमेंट आते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐड होते रहने वाले हैं, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो देखो इंडिया में इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 27। तो आपको लग रहा होगा मैम 29 है, नहीं, तो चेक करो यहाँ पे 6 and 8 नहीं है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। 6 and 8 आर रिमूव्ड। ओके, 6 and 8 आर रिमूव्ड। देखो यहाँ पे AS6 था पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, बट नाउ इट इज मर्ज्ड इनटू AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन रिलेटेड गाइडलाइंस हमें AS10 से ही मिलेगा अभी, ठीक है। एंड AS8 था ऑन अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो AS भी रिमूव हो गया, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस मर्ज कर दिया इन AS26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये दो AS रिमूव हो चुके हैं, इसलिए अभी कितने स्टैंडर्ड्स है इंडिया में, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर जो हमें सीखने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्लेनेशंस ऐड होते हैं, वैसे ही अमेंडमेंट्स भी होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। जैसे आपके एक्ट में, लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट्स होते हैं। क्यों, देखो मेन कहाँ से, ग्लोबल स्टैंडर्ड IFRS में अगर कुछ अमेंडमेंट हो गया तो इंड AS में अमेंडमेंट होगा, इंड AS में भी अमेंडमेंट हो गया तो AS में भी हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे विच विल बी करस्पॉन्डिंग टू इंड AS। तो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दी है, इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिवीजन हुई है। दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज्ड, व्हाई दे आर रिवाइज्ड, टू मेक देम इन लाइन विद द करस्पॉन्डिंग इंड AS। तो इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS2, 4, 10, 13, 14, 21, 29, इसमें क्या किया है, रिवीजन किया है टू मेक देम इन लाइन विद द करस्पॉन्डिंग इंड AS। ओके, सो नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो आपको ऑलरेडी पता है, इफ लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिफरेंट देन वी नीड टू फॉलो द लॉ बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द लॉज एंड लोकल रेगुलेशंस। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड फॉर कन्वर्जेंस टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे इंडिया में वही हम कंटिन्यू करते, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कन्वर्जन टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। सो देखो अभी बहुत सारे बिजनेसेस मल्टीनेशनल लेवल पे है, मतलब मल्टीनेशनल आपको पता है बिजनेस सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, बिजनेस इज एक्सपांडिंग इन मोर देन वन कंट्री। सो मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में क्या होता है, दे कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट। सो देयर इज अ कटिंग ऑफ फ्रंटियर्स, देयर इज अ कटिंग अक्रॉस फ्रंटियर्स। सो इनके केस में क्या होता है, देखो हर एक कंट्री के अलग अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो हर एक कंट्री के हिसाब से उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने पड़ेंगे, दे नीड टू ट्रांसलेट, रीइंस्टेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, यूएस में यूएस गैप के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट है अगर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे ही नहीं तो। जैसे फॉर ग्लोबल लैंग्वेज, अगर हमें फॉरेनर्स के साथ बात करना है तो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, सो वी कैन इजीली कम्युनिकेट विद देम। ओके, सो सिमिलरली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको समझ में आने चाहिए, उनके हमें समझ में आने चाहिए स्टेटमेंट्स। तो इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। तो किसी ने भी अकाउंटिंग प्रिपेयर किया, ओके, कौन से भी कंट्री के अकाउंटेंट ने, तो वो सेम ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। सो देयर विल नॉट बी एनी नीड फॉर ट्रांसलेशन और रीइंस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, उनको भी क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने हैं उनको। तो वो कब कंपेयर कर पाएंगे, अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो ही। ओके, सो देयर शुड बी हार्मोनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अराउंड दी वर्ल्ड। तो अगर फॉर यूनिफॉर्मिटी है तो ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ओके, एंड देन वी कैन कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी कंट्री। ओके, सो इस प्रॉब्लम के ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज सेटिंग अ सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विल facilitate cross border flow of money, global listing in different markets, stock markets, and comparability of financial statement। तो देखो, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज करना है तो सबके लिए इजी हो जाएगा, करेक्ट? नहीं तो आपको बार बार हर एक कंट्री के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कन्वर्जन टूवर्ड्स ग्लोबल standards. Okay, that's why there is a introduction of IND-AS in India. So global standards कौन सेट करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सब डिटेल्स हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। So thank you very much for watching this video. Share with all your friends who find accounting standards very difficult. In next video we will cover the remaining part. Thank you very much, and subscribe to our channel, and notification you will get once you subscribe for the channel. Thank you very much.